آپ عجیب بات کریے, آپ ایپل اور اورنجز کا تقابلی جائزہ لے رہی ہیں. مصطفیٰ شاہ صاحب آ جائیں, ان کا فیس ہی پیپل پارٹی کی طرف ہوتا ہے. مصطفیٰ شاہ صاحب کون سا ہمارا سنم جاوید کے بارے میں بھی. خدا کی قسم ہمارے گھروں میں ہماری مائیں بہنیں ہیں, جو آپ کے پروگرام میں بیٹھ کر اس طرح لگ رہا ہے کہ جیسے میں حکومت میں ہوں, یہ دونوں اپوزیشن میں. کوئی یہ کہے کہ پی ٹی آئی میں بڑے مورل اور ایتھکس ہیں. بلوچستان کے حالات پہ بات ہو رہی تھی, یہ کہہ لگا رہے تھے. جو سٹیٹمنٹ دیا اس خاتون کے ڈریس کے اوپر, چنک آپ نے وہی سننے کو ملا, یہ ہو گیا, لٹ کے برباد ہو گئے, ہمارا یہ نہیں ہو رہا, ہمارا وہ نہیں ہو رہا. مجھے کہہ رہی ہیں کہ جی یہ بدتمیزی کرتے ہیں. میرے بھی گھر میں ایک بچی ہے جس کی مجھے شادی کرنی ہے. میری جو ہے ایک فیک ویڈیو جو ہے کہ ممبر اقبال آفریدی نے ایک عورت کے کپڑوں کے اوپر اعتراض کیا. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ملک صرف حکومت کا ہے, یہ ملک باقی لوگوں کا نہیں. کی فیک ویڈیو کو کسی کی شکل بنا کے ریلیز کیا آج تک؟ یہ مریم نواز کے ساتھ ہوا ہے, یہ میرے ساتھ ہوا ہے. کرتے ہیں اپنی ذات کی بات کر کے, یہ ہاؤس چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ہوتے کون ہے بھائی کوئی صاحب کسی خاتون کے ڈریس پہ بات کرنے کے لیے؟ وہ جب میں کورٹ جاتی ہوں میری ماں کتنی ڈسٹرب ہوتی ہے, میں اپنے بارے میں بات کر کے ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتی. میں السلام علیکم ناظرین. عظمیٰ بخاری اور شرمیرہ فاروقی نے مل کر نثار جٹ کو گھیر لیا, ایک دوسرے کی کارکردگی میں نقص نکالتے رہے. چلیے ناظرین ویڈیو دیکھتے ہیں. ویڈیو پر جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر لیجیے. بلوچستان کے حالات پہ بات ہو رہی تھی, یہ کہہ لگا رہے تھے. مطلب سنجیدگی کی کیا غیر سنجیدگی کی یہ انتہا ہے کہ ہمیں دکھ ہوتا ہے. اور جب اپنی بات کرتے ہیں نا, اپنی ذات کی بات کر کے, یہ ہاؤس چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. خالی ہاؤس پڑا ہوتا ہے, اس کے بعد جا کے ہمیں بات کرنے کا موقع ملتا ہے, ہم کچھ بات کر لیں. وہ ادھر سے لیکن کورم پورا کرنا تو دیکھیں نا, اب حکمران اتحاد کا کام ہے نا. نہیں دیکھیں, ایسے تو نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں اسما, ہم بیٹھے ہوتے ہیں, ہاں کسی دن یہ ہوتا ہے کہ کوئی 2 4 6 ممبرز نہیں ہو, وہ الگ بات ہے, لیکن ادروائز ہم بیٹھے ہوتے ہیں ہاؤس کے اندر, ہم بیٹھے ہوتے ہیں. بلکہ اکثر میں پی ایم ایل این والوں سے شکایت کرتے ہیں, ہم پیپلز پارٹی والے, کہ کورم تو ہم پورا کر رہے ہیں, آپ کا کورم مطلب آگے کے جو 2 بینچز ہوتے ہیں نا, وہ خالی ہوتے ہیں. آج ہی میں نے کھڑے ہو کے میں منکی پاکس پہ بات کر رہی تھی, کیونکہ کسی کو پرواہ نہیں ہے. ہمارے تو بچے ہیں جی, ہمیں پرواہ ہے کہ اس میں ہو کیا رہا ہے, تھرمو سکینرز ایئرپورٹس میں چل نہیں رہے. پورا پی ایم ایل این غائب. آج حنیف عباسی صاحب نے کہا, صرف حنیف عباسی صاحب انہوں نے کہا کہ وزیر نہیں آ رہے, اور بیچارہ ایک دانیال چودھری بیٹھا تھا, اور ان کی چند خواتین بیچاری تو بیٹھی رہتی ہیں, اور کوئی وزیر نہیں ہے, کوئی جواب دینے کے لیے نہیں ہے. وہ عظیم تارڑ صاحب ساری منسٹریز کے جواب دے رہے ہوتے ہیں, اور بیچارے عطا تارڑ کی آج شامل تھی, پوری منسٹری آف پاور کے جواب وہ دے رہے تھے. اس کا کیا کام ہے انفارمیشن منسٹر کا, منسٹری آف پاور کا جواب دینے کا؟ بجلی کے بارے میں وہ کیا جواب دے گا بیچارہ؟ جنرک سے جواب ہی دے گا نا. کوئی حال نہیں ہے. عظمیٰ بخاری صاحبہ, آپ کی حکومت کے اندر بھی مجھے لگتا ہے آپ ہی ہیں 1 2 لوگ جو کہ نظر آتے ہیں اور جواب دے ہوتے ہیں, ورنہ حالت مطلب یقین زیادہ ہے کہ بھئی ٹھیک ہے, اب ہمیں 5 سال رہنا ہے, ہمارے ساتھ جو ہم 1 پیج کی حکومت ہے. یہ تاثر جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کا بھی بڑا مضبوط تھا, 1 پیج کی حکومت, اور پھر آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا. تو آپ کی حکومت بھی اسی زوم میں ہے. بہت شکریہ اسما. نہیں, بالکل کسی زوم میں نہیں ہے. ہمارے پاس جو ہے, بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ 5 سال بھی بہت کم ہے ان مسائل کے لیے جو مسائل ہمیں ملے ہیں. اب جو پہلے شرمیلا نے جو بات کی, میں اس کو پہلے آگے بڑھانا چاہتی ہوں کہ جب ہاؤسز کا صرف ایک کام بتا کے بھیجا جائے کہ آپ نے صرف جو ہے وہ ایک شخص کی بات کرنی ہے, آپ نے صرف جو ہے وہ سستی سی پالیٹکس کرنی ہے, اور اس کے بعد آپ نے جلوس نکال کے آپ نے باہر آ جانا ہے, اور آپ کا باقی چیزوں سے کوئی تعلق نہیں, یا آپ نے ہاؤسز چلنے نہیں دینا, باقاعدہ طور پر یہ انسٹرکشنز ہیں, تو پھر یہ ہمیں پوچھیں گے یا ہم سے جو ہے وہ کوئی یہ بات کر سکتا ہے کہ جی کورم پورا نہیں تھا. ابھی جج صاحب نے اپنی خود کی کارکردگی بڑی اچھے طرح سے بیان کی. مجھے حیرت ہوئی کہ جج صاحب کے منہ سے, اللہ نے جانے کہ یہ کانشیسلی کہا انہوں نے یا ان سے سچ نکل گیا ان کے منہ سے, کہ ان کی اپنی پارلیمنٹری پارٹی میں کوئی ڈسپلن نام کی چیز نہیں ہے. جس کا 2 دل چاہتا ہے وہ منہ اٹھا کے باتیں کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے, ابھی جو ان کی طرف سے تقریریں ایک آدھی ہوئی ہیں, وہ میں نے سوشل میڈیا پر مجھے اتفاق ہوا ہے ایک تقریر دیکھنے کا, اور میں یقین مانے کہ میں عجیب میری حالت تھی کہ اگر اللہ پاک یہ حال ہو گیا ہے کہ یہ کوالٹی آف سپیچ ہے اگر ہاؤسز کے اندر, تو پھر اللہ ہی مالک ہے اس ملک کا اور اس ملک کے ہاؤسز کا. جب آپ کے ممبرز کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کورم پوائنٹ آؤٹ جو ہے وہ کب کرنا چاہیے, کوئی کسی کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور پھر آپ ہمیں پوچھ رہے ہیں کہ بات نہیں ہوتی یا بات نہیں کی جا رہی. مگر یہ تو حکومت کا کام ہے نا کہ وہ یہ ساری چیزیں ان آرڈر کرے. ہم نے گیلانی صاحب کی حکومت دیکھی ہے عظمیٰ, آپ کو یاد ہوگا, وہ خود ہاؤس میں بیٹھتے تھے, وہ صبح آتے تھے, وہ شام تک اگر سیشن ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھتے تھے, وہ ہاؤس میں بیٹھتے تھے, وہ 0 آور کرتے تھے. مطلب یہ تو حکومت کا کام ہے کہ وہ کورم بھی پورا رکھے, وہ جواب بھی کرے, وہ سوال جواب بھی دے, اور ان کو بھی ان آرڈر کرے. ہاؤس بزنس کمیٹی بھی اسی لیے ہوتی ہے. جی بالکل ہے, جو میری ذمہ داری ہے میں اس پہ آ رہی ہوں. پہلے جو جج صاحب نے کہا, جو شرمیلا کی بات تھی, میں اس پہ جو ہے وہ کامنٹ کر رہی تھی. اب دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے جی فیض منی جیسی فیسلٹی جو ان کو ملی ہوئی تھی. ہم جو ہے وہ سیاسی لوگ ہیں, اور سیاسی لوگوں کے ذریعے ہی جو ہے وہ ہاؤس اور پارلیمنٹ چلا رہے ہیں. یقیناً حکومت کی ذمہ داری ہے کورم پورا کرنا, لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ملک صرف حکومت کا ہے, یہ ملک باقی لوگوں کا نہیں ہے. یہ جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں, ان کو صرف میڈیا کوریج چاہیے. ان کو اب یہ مجھے حیرت یہ ہے کہ شبلی فراز ہے, وہ
साहब हैं, वो साहब हैं, सारा दिन तो हम इनका भाषण सुनते हैं, वो हाउस के अंदर हो या हाउस का बाहर हो, अभी इनको कवरेज नहीं मिलती, अभी इनको कोई दिखाता नहीं है, इनका ब्लैकआउट है। भाई खुदा का खौफ करें, कभी निकलवा के देखें तो सही। और बाय द वे जो जिसकी बात ये कर रहे हैं कि जी ब्लैकआउट है या दिखाया नहीं जा रहा, ये रूल तो इमरान खान ने बनाया था ना कि अगर आपके ऊपर केसेस चल रहे हैं और अगर आप जो है वो जेल में है तो फिर आपको दिखाया नहीं जाना चाहिए, जो कि गलत है। हमें उसको अगर हमारी तरफ से हो रहा है, जैसे उन्होंने कहा कि अता ने कहा है वो ठीक करेगा, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन ये रूल जो है ये इमरान खान ने बनाया था कि जो वो हमारे लीडर्स का ब्लैकआउट करता था। सो इसलिए अभी इतनी सारी इनकी जितनी भी इनको चले, इनको मान लेते हैं कि इनको बिल्कुल कवरेज नहीं मिलती, जितनी भी मिलती है उसमें आपने जो है वो एक शख्स के रोने धोने, उसको इलेक्ट्रिक ब्रश दे दे, उसको जिम की मशीन दे दे, उसको डंबल दे दे, ये बातें होती, उसको फलानी चीज दे दे, ये तो हो रहा है। वो छत के ऊपर से चूहे गिर रहे हैं, ये बातें हो रही। नहीं, वो तो जब आप भी अपोजिशन में थे और आपकी भी 2 रोज खाली थी तो उस वक्त भी इसी तरह की तकरीरें होती थी ना। मतलब मसला ये कि ये तो उनका हक है ना कि वो अपने लीडर की रिहाई के लिए बात करें। नहीं, आज ऐसा नहीं करें, नहीं आज मैं ऐसा नहीं, मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करती, मैं आपसे फेयर कमेंट एक्सपेक्ट करती हूँ कि हमारी लीडरशिप की जो रोने धोने के, हमने ही रोने धोने मचाए थे, जैसे ये रोना धोना, वो बात ही कोई और नहीं करते। एक तरफ कहते हैं वो डट के खड़ा है, वो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी बात नहीं करना चाहते। दूसरा, वो जेल के अंदर प्रोसीडिंग कम होती है, उनका कौम से खिताब ज्यादा होता है, जो एक एक चीज बाहर आकर रिपोर्ट भी होती है, जिसको आप लोग हम सब बैठ के जो है यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। बात दुरुस्त है, हमें बात बलोचिस्तान पे करनी चाहिए, हमें दुरुस्त है, हमें बात बिजली की कीमतों पे करनी चाहिए, हमें बात दुरुस्त है कि हमें जो है वो अपनी भविष्य को जो अब थोड़े बहुत इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं उस पर करनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि IMF इस पे भी बात करनी चाहिए कि IMF ने एतराज कर दिया आपकी सब्सिडी के ऊपर, इस पे भी एतराज करना चाहिए कि IMF के अगले जो स्केड्यूल है उसके अंदर भी पाकिस्तान के हवाले से जो पैकेज है वो कहीं मौजूद नहीं है। इस पे भी तो बात करनी चाहिए ना। आपने जो रिलीफ दिया 2 महीने का, वो भी एक हर्डल बन रहा है। जी हाँ, लेट्स डू इट। मैं यही तो कह, इस पे करते हैं ना बात। ये IMF के प्रोग्राम पे इतनी सेंक्शंस हम पे जो है वो क्यों लग रही हैं? 2016 में हमने IMF का प्रोग्राम खत्म किया था ना, उसके बाद IMF का प्रोग्राम बहुत देर से लिया और उसके बाद हमें जहां छोड़ के चले गए, अब वहां से उसके बाद हम पे कोई बिलीव करने के लिए तैयार नहीं। कभी ये हुआ था? आपको याद होगा जो हमें एक उन्होंने बेल आउट पैकेज दिया था, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के पास गए थे IMF वाले, ये गारंटी लेने के लिए कि हमें डिच नहीं किया जाएगा। ये हालत है। अच्छा, मगर ये अच्छा, कुछ बुनियादी मसाइल वैसे है जट साहब कि वहां पे पार्लियामेंट के अंदर ये शिकवा भी दुरुस्त है दोनों जमातों का कि PTI का भी इंटरेस्ट नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ वो चूंकि टीवी पे आता है कि वो जाता है कि कौन कौन बोला, किसने क्या किया, तो वो खान साहब भी देखते हैं टीवी, तो उनके पास PTV तो है ना, तो इसलिए वो सिर्फ उसी पे फोकस करते हैं। वो ये IMF के पैकेज के ऊपर, ये पाकिस्तान के मौशी मसाइल के ऊपर कितने पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स आए हैं आपकी जमात की तरफ से? मुझे तो आपके प्रोग्राम में बैठकर इस तरह लग रहा है कि जैसे मैं हुकूमत में हूँ, ये दोनों अपोजिशन में। समझ लें, आज इसी में खुश होकर समझ लें आप। ये दोनों अपोजिशन में, ये इनकी जो जिम्मेवारी है उसको इन्होंने फोकस किया है कि मतलब शर्मिला मेरी बहन है, ये मुझे कह रही हैं कि जी ये बदतमीजी करते हैं। शर्मिला बहन, आप हर प्रोग्राम में ये बात क्लेम करती हैं। अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बैठे हुए हैं, इजलास में बैठे हुए हैं, खुदा की कसम हमारे घरों में हमारी माएँ बहनें हैं और वो भी आप जैसी हैं। अगर हम ऐसे अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करेंगे तो मेरा ख्याल है कि ये हमारे लिए शर्म से डूब के मरने वाली बात है। आप जैसे लोग कम है ना सर, तो मसला ये इल्जाम एक हद तक आपका, पहले जब एक वाकया हुआ था उस वक्त हमने खुद रियलाइज किया, जिसमें हमारे MNA सस्पेंड हुए और हमने कहा कि जी ये, उसके बाद ये वाकया नहीं हुआ। लेकिन अब इस बात को हर प्रोग्राम में कोट करना मेरा ख्याल है ये मुनासिब नहीं है। अब ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद भी एक वाकया हो चुका है, फिर स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में इनके मेंबर इकबाल आफरीदी ने एक औरत के कपड़ों के ऊपर एतराज किया ना, अब्यूज तो नहीं ना किया, एतराज करना किया, उसके ऊपर कमेटी बन गई है, कमेटी उसका फाइंड आउट कर लेगी। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि चले कोई बात नहीं, अगर वो तो एतराज है ना, ऑब्जेक्ट किया है ना। औरत की आप जब ये इल्जाम लगाते इतनी इलेक्ट्रिक्स की जो स्पोक्सपर्सन थी उनके हवाले से, वैसे वो बहुत गलत, जो भी हम खुद कहते हैं उन्होंने नहीं करना, गालियां तो नहीं ना, गाली तो ना कहना। ये अगर आप मैंने खुद खड़े होकर कहा, बल्कि आप जखरानी साहब से पूछे, मैंने कहा कि यार मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे माफी मांगता हूं, स्पीकर साहब ने कहा यार कमेटी बन गई, माफी मांगने का। चलिए, अब इसकी अच्छी बात है आपने कि इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। मगर मुझे ये बताइए, ये जैसे IMF वाला मसला है, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं आप बताइए, ये पूछे ना हुकूमत से, क्यों नहीं पूछते? क्यों नहीं? लेजिस्लेशन में क्वेश्चन आवर में हम लोग शामिल होते हैं, आप उठा लें क्वेश्चन आवर में। उस्मा तो पंजाब में बैठी हुई, इनको वफाक का क्या पता। क्वेश्चन आवर, कॉलिंग अटेंशन नोटिस, पॉइंट ऑफ ऑर्डर, हर मैटर में हम लोग वहां पर होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम जो हमारा काम है, लेकिन वॉकआउट कर जाते हैं ना सर, कोई आज तक वॉकआउट नहीं किया। क्वेश्चन आर के मेरे पास क्योंकि डिटेल नहीं है, कोई वॉकआउट हमने नहीं किया।
2 times। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि हमारे एक दो साथी ने कहा कि 7 सितंबर को खत्म नबूवत के ऊपर मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर करना चाहता हूं, और ताकि बोथ हाउसेस को बुलाकर उस 50 साल एनिवर्सरी उसकी सेलिब्रेट की जाए। उस पर वहां पर अच्छा, मेरे लिए तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, नहीं हम नहीं करने देंगे। अच्छा, उन्होंने कोरम पॉइंट आउट कर दिया। मगर ये 50 साल हो रहे हैं, पार्लियामेंट इस वक्त 50वीं सालगिरह अपनी मना रही है, मना चुकी है, 50 साल हो गए, और 50 साल के दौरान जो है वो पार्लियामेंट की जितनी बेतौकीरी हम देख रहे हैं शर्मिला, इससे पहले हमने कभी नहीं देखी, बिल्कुल नहीं देखी है। मतलब क्वालिटी ऑफ डिस्कशन, पॉइंट ऑफ ऑर्डर, पार्टिसिपेशन, ये एग्जांपल देते हैं जी, पहले भी होता रहा है। आप गलत रिवायतों को क्यों आगे लेके जा रहे हैं? कोई अच्छी रवायत डालें, बिल्कुल ऐसी बात नहीं करते, नॉर्म्स को फॉलो करें, अपना हम ऐसी कोई बात नहीं करते, पहले भी होता रहा, इनकी तरफ से नहीं होता रहा, और मैं वो इनकी तरफ से। अच्छा चले, अब हम नहीं चाहते कि पार्लियामेंट वाला माहौल यहाँ हो जाए। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि अगर बात से बात निकलेगी दूर तक जाएगी, हम भी नहीं करते, हम भी नहीं करते। रवायत को खत्म हो चुकी है ना, और अब कैसे खत्म करनी चाहिए? आपकी पार्लियामेंट चल रही है, आपकी पार्लियामेंट चल रही है, आप कहती है कि अगर आपको स्पीकर क्वेश्चन, दहशतगर्दी पे कितनी बात हुई है, मैं ये जानना चाह रही हूँ। दहशतगर्दी पे आपको बोलने कौन देता है? अख्तर मैंगल ने किस बात पर इस्तीफा दिया है? उसका मेन फोकस ये है कि मुझे बात करने का मौका नहीं दिया जा रहा। अगर आप पार्लियामेंट को अपनी मर्जी से चलाना चाह रहे हैं, अपनी मर्जी से चलाना मेरी जमात से नहीं है, स्पीकर साहब मेरी जमात से नहीं है, लेकिन जितना टाइम वो अपोजिशन को देते हैं हमें उनसे शिकायत होती है। हम बटन दबा दबा के थक जाते हैं, हमें टाइम है, लेकिन वो दिल खोल के अपोजिशन को टाइम देते हैं। क्या वजह है कि हर 2 मिनट बाद तो वो खड़े हो जाते हैं, हर 2 मिनट बाद बात करने पॉइंट ऑफ ऑर्डर। आप खुश नहीं है यार सादिक साहब से? खुश नहीं आप यार सादिक साहब से? यार सादिक साहब का इंतहाई एहतराम है मेरा, आज से नहीं, उनसे बहुत पुराना तरीना ताल्लुक है। मैं कब कह रहा हूँ कि वो लच्चे हैं, वो भी नफीस आदमी है, ये मैं हज़फ करती हूँ सर, मैं उनका इंतहाई एहतराम करता हूँ, लेकिन हमें भी उनसे थोड़ी बहुत शिकायत हो जाती है बाज़ों का कि सर आप इस तरह ना करें, ये बात ना करें, ऐसी कोई। अच्छा, मैंने आज नोटिस किया, मुस्तफा शाह साहब आ जाएं, उनका फेस ही पीपल पार्टी की तरफ होता है, मुस्तफा शाह साहब का। अच्छा चलिए, मैं एक ब्रेक कि मैं शहबाज राना की स्टोरी पढ़ रही थी, उन्होंने ये लिखा है और फिर वजीर खजाना ने मगर इसकी तरदीद की है, तो क्या उसकी वजह से है ये कि नहीं बन रहा, आगे मामला नहीं चल रहा? देखिए, मैं पहले तो एक रिस्पॉन्ड करना चाहती हूँ। अभी आप देख लें कि ब्रेक से पहले भी जो मैंने कहा था वो दुरुस्त हुआ ना, कि अभी भी बेबसी, लाचारगी, क्या एक आपको सारा चंक आपने वही सुनने को मिला, ये हो गया, लुट के बर्बाद हो गए, हमारा ये नहीं हो रहा, हमारा वो नहीं हो रहा, इसी पे बात होगी, आम आदमी की प्रॉब्लम से बात नहीं होगी। दूसरी बात यह है, मुझे अफसोस ये है कि जज साहब जो है वो एक तरफ कह रहे हैं कि वो जो स्टेटमेंट दिया उस खातून के ड्रेस के ऊपर वो गलत था, लेकिन दूसरी तरफ उसको डिफेंड कर रहे हैं कि वो गाली तो नहीं थी। होते कौन है भाई कोई साहब किसी खातून के ड्रेस पे बात करने के लिए? वो पार्लियामेंटेरियन है, वो उसकी बात करें ना जो काम करने वाला है, वो किसी को बुरके पहनाने वाले या किसी को जो है वो किसी के लिबास पे बात करने वाले कोई होते नहीं है। इससे बड़ी गाली हो नहीं सकती कि कोई मुझे बताए कि मुझे क्या करना है। ये गाली है भाई, इसको समझने की कोशिश करें। मगर उन्होंने कहा कि ये दुरुस्त बात नहीं थी, मतलब उनकी पार्टी के अंदर इसके ऊपर रिजेंटमेंट आई है। मैं अभी जाती विक्टिम बैठी हूँ आपके सामने कि मेरे भी घर में एक बच्ची है जिसकी मुझे शादी करनी है 1 साल 1.5 साल में, और मेरी जो है एक फेक वीडियो जो है वो जी बिल्कुल बहुत काबिले मुजम्मत बात है, मोरालिटी का इजहार किया गया है ना। सो ये मुझे कोई ये कहे कि पीटीआई में बड़े मॉरल और एथिक्स हैं, मगर दूसरी तरफ भी ऐसे ही हो रहा है ना, पीटीआई की खवातीन के ऊपर भी इसी तरह के हमले हो रहे हैं ना, आप देखिए ना बहुत सोशल मीडिया के ऊपर तो सनम जावेद के बारे में भी नहीं, मेरे बहुत सारे एतराजात हो सकते हैं, मगर सनम जावेद के बारे में भी तो चीजें चलाई गई और चली हैं, उसमें बहुत सारे लोग शामिल थे आपकी सोशल मीडिया टीम के। एक मिनट आप अजीब बात करिए, आप एप्पल और ऑरेंजेस का तकाबली जायजा ले रही हैं। किसी की हमारी पार्टी में किसी ने किसी की फेक वीडियो को किसी की शक्ल बनाकर रिलीज किया आज तक? ये मरियम नवाज के साथ हुआ है, ये मेरे साथ हुआ है, ये सानिया आशिक के साथ ये बात है। ये तो आपको इसके ऊपर साइबर क्राइम में आपको इस पे इंसाफ मिलेगा? आप बताइए, हम तो बहुत सारे विक्टिम्स बैठे हुए हैं, इंक्लूडिंग शर्मिला, माई सेल्फ, बहुत सारे। कोई साइबर क्राइम कुछ करेगा इसके ऊपर? आपकी हुकूमत है। मैं अपने बारे में बात करके टाइम जाया नहीं करना चाहती। मैंने ये हिम्मत की है, मेरे लिए आसान नहीं है। जब मैं कोर्ट जाती हूँ मेरी माँ कितनी डिस्टर्ब होती है। मैं किसको दरवाजा खटखटा के बताऊं कि कितनी वीडियो नहीं है, इसीलिए कोर्ट गई हूँ, बिकॉज मुझे भी अपनी बच्ची की शादी करनी है ना। मुझे भी चेहरे में जो है वो मेरे चेहरा दिखाना मुश्किल है, मुझे उस पर छोड़ दे, वो मैं देख लूंगी। अल्लाह पाक मेरे साथ क्या इंसाफ करते हैं, क्या होता है। और आपके साथ है इस मामले के ऊपर। जी